On running on their footsteps, I would say we have Dr. Saurabh as well, who has brought a new spark to this college. Please give him a big round of applause. So, moving further, I would like to request Dr. Saurabh to welcome our guest with a bouquet and our principal ma'am, please do the honors, ma'am, please, for welcoming the USW team. I would also like to request Principal Ma'am, Nursing Department, please. Vandana Ma'am, please do the honors. Respectfully, we welcome Ms. Denelia Kellius from Malta. She is representing us from the CMBS College team. We also welcome Eurostep Zone team with a media partner, Mr. Saranjit Ji, HR 71 News. So it's our utmost gratitude to Ms. Denelia that they have found precious and important that they have visited LBS Group of Institution for this seminar. They have chosen us to deliver a special message so that it can be helpful to the students over here who only being in India or as we tell, due to our society and culture, sometimes we narrow up our thinking zones, and after graduating we think of that to stay in India only for the other scope and services. But nowadays it's been a good pleasure that we have scope not in India but to the abroad, and abroad is too much. I myself is graduated in Philippines. I stayed there for 6 years. I graduated myself in Bachelor of Science and then MD Medicine. And then we are back to India so that we can explore you guys on these things, that not only after doing BMS or graduating in science, nursing, that you will only work in India only, but you can work outside. मेन क्या था हमारा मोटिव, हमने लास्ट ईयर यूरोस्टेप जोन स्टैब्लिश किया इंडिया में। हम काफ़ी टाइम से आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं न्यूज़पेपर में, मीडिया के माध्यम से, कि बाहर जाने के लिए क्या है, लोगों के साथ बहुत गलत होता है, पेरेंट्स के साथ बेइंसाफ़ी होती है, कैसे पैसे ले लिए जाते हैं, एजेंट भाग जाते हैं, ऑफिस बंद कर जाते हैं। मोस्टली अगर आपने देखा हो तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या शहर में आप देखिए, बाहर के आगे ऑफिस अपना खोलते हैं, 2-4 साल काम करते हैं, पैसे इकट्ठे किए और फुर्र। हाँ, मैं लोकल में यहाँ पे 8-10 साल से बिलासपुर में ही काम कर रहा हूँ, ऑफिस यहीं पे है। तो लास्ट ईयर रविंदर शर्मा जी माल्टा से आए, और जब मेरी कोविड के बाद इनसे बातचीत होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि ये पहले से ही काम कर रहे थे मोल्टा में रहकर। इंडिया छोड़ के इन्होंने चाइना, नेपाल और श्रीलंका, सऊदी, इन कंट्रीज में काम कर रहे थे ये जॉब को लेकर सिर्फ। तो जब मैंने इनसे लास्ट ईयर जब बात हुई मेरी इनसे, तो उन्होंने कहा भी क्यों ना यही स्टार्ट करते हैं, एक ईमानदारी से काम किया जाए तो बहुत अच्छा है सभी के लिए। तो लास्ट ईयर हमने यूरोस्टेप जोन की नींव रखी और काम करना स्टार्ट किया गया। बिलासपुर से हम शुरू हुए, फिर हमने स्टैब्लिश किया 2021 में गुलाब नगर में हेड ऑफिस बनाया गया, ब्रांच ऑफिस बिलासपुर रखी गई। तो साथ ही फिर हम स्टडी की ओर बढ़ चले। डेनिला मैम से हमारी बात जब होनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमारे साथ जुड़ के काम करने को तैयार हो गए। तो मेन मोटिव था स्टडी वीज़ा
कैसे किया जाता है, यूरोप कंट्रीज क्या हैं, सेनेगल। I think now is good afternoon. So सबसे पहले मैं थैंकफुल करना चाहूँगा एमडी सर का, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे रूबरू हो सकें। सो क्योंकि आप सभी मेडिकल स्टूडेंट हो और मेडिकल स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है यूरोप के अंदर। तो मुझे, क्योंकि ये मेरे साथ मिक्स पूनिया जी हैं, तो ये भी आप ही फील्ड से हैं। इन्होंने यही कोर्स जो आप यहाँ कर रहे हो, करने के बाद ये मोल्टा में सेटल हैं और जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी स्टडी के बाद प्लेसमेंट या उसके बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। Good afternoon, everyone. So, regarding the nursing courses, as you all are here doing nursing, I have been working in Malta from past. I have experience with the government hospital for 4 years, and then now I'm working with the private company, and have been working as a carer as well. And my experiences were really amazing, because what you have learned here and you have practiced here will help you a lot when you will go abroad, as you work in a private sector as well and you will work in a government sector as well. So basically the jobs are regarding taking care of elderly, or if you're working in hospitals or homes. So I think especially during this COVID time, they need very much of this medical. Having us here, so please give a big round of applause to Daniela ma'am. To see so many women who are yes, I'm so proud of you all. Well done. And so basically, I am Business Development Manager for Central Mediterranean Business School. And we have opened our doors in 2013 in Malta. At first we're focusing only on local students, but this year we are opened also our doors to international students as well. And with regards to courses, we have various kind of courses. So we have HR, we have business, we have health, as well as construction, transport, and गुड मॉर्निंग मैम। मैम माय क्वेश्चन इज, जैसे हम अपनी कंट्री लेफ्ट करके वहाँ जा रहे हैं और कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो हमारी जॉब्स वहाँ कितनी सिक्योर होंगी, और वो हमें मतलब एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मतलब वो एमबीबीएस डॉक्टर को एक्सेप्ट करेंगे ना, मतलब आयुर्वेदा डॉक्टर को वो क्यों प्लेसमेंट देंगे वहाँ? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इस टाइम? सर बीएमएस। One more question. They were asking you that will they have to pursue another course after BAMS to get recruited over there, or they will get recruitment directly? they can get a job straight away. It's not a problem. Obviously, and if you've gone to your studies as well in Malta while working, that would be a big plus for you. Even with regards to wage, when they see that you have that also and the qualification, especially the masters, your wage will be much better. Okay? I would make a certificate saying that without trying to Please. Only after 20 years. You can get PR after 20 years, but 20 years तो आप काउंट नहीं कर सकते PR में। जैसे कि और कंट्रीज हैं, पुर्तगाल हुआ, allowed to practice our pathy in private sectors very well. So I have two queries related to this. That first of all, like in India, we have availability of drugs very easy. In Malta, that will be available because in government sector we can depend on the government for the supplies and everything. But I think in private sector we'll have to arrange everything by ourselves. So how will that communication and import-export happen? Secondly, I
in my knowledge, I know that some countries in Europe and like Australia, they give authorization license to practice your pathy. So do we get that authorized license here in Malta? Practitioners of Ayurveda here, do we get those license and authorization to practice as an Ayurvedic physician there? With regard to, I'm not sure about it because I don't want to tell you something maybe and it's not correct, but from my understanding, if you already have a degree and Ma'am, actually I want to know about the study visa after my nursing, because I have done with my BSc nursing from MMU Mulan, and after that I have completed 3 years in I wanted to ask that in our country, in India, we have like, we complete our degrees, we do our internships, and then we start our jobs. In other countries, it's usually we do the degree, internship, then residency, attending. So what's the serial and the level of like jobs in Malta? Secondly, I wanted you to enlighten us about the ma'am just gave us a basic overlook of what type of jobs we get as in nursing department, for example, taking care of elderly, etc. So what kind of jobs do we get as a doctor there, like consultancy, or do we get a prominent OPDs? What system do we follow there? I wanted to ask that in our country, in India, we have like, we complete our degrees, we do our internships, and then we start our jobs. In other countries, it's usually we do the degree, internship, then residency, attending. So what's the serial and the level of like jobs in Malta? Secondly, I wanted you to enlighten us about ma'am just gave us a basic overlook of what type of jobs we get as in nursing department, for example, taking care of elderly, etc. So what kind of jobs do we get as a doctor there, like consultancy, or do we get a prominent OPDs? What system do we follow there? आयुर्वेदा उन्होंने बहुत डिमांड है, वो खुद बहुत चेंज करते हैं, पर ये है कि आपको 6 महीने साल का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मत सोचो कि आयुर्वेदा की डिमांड नहीं है, आयुर्वेदा की बहुत डिमांड है। यूरोप में तो बहुत हो चुका है, चाहे वो जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, माल्टा हो। पावन धरती को भी नमस्कार करता हूं, जिस धरती से जिनको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वो लोग तैयार हो रहे हैं। मेरी मुराद कि मेडिकल फील्ड जिनको भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है कि ये भगवान का दूसरा रूप है। अब कोरोना काल के अंदर देखा आपने, सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, परिवार के मेंबर ही एक दूसरे से मिलने को हिचकिचा रहे थे। लेकिन मेडिकल फील्ड्स के चाहे एएनएम है, लैब टेक्नीशियंस हैं, ये स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इन्होंने क्या कमाल की सेवा किया है, पेशेंट की कितनी अच्छे तरीके से केयर किया है। तो एक दिन मैं भी इसी तरीके से मेडिकल फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन समाज सेवा के अंदर अब मैं, हरदेव सिंह जी, रविंद्र इस तरीके से अब काम करते रहते हैं। मैं भी सवेरे 8 बजे निकल जाता था, शाम को 8 बजे वापस जाना। तो मेरी बेटी कहने लगी, पापा मेरे को पुलिस वालों का नंबर देके जाना। मैं कमाल है, एमटेक करी है बेटी तूने, पुलिस वालों को क्या करना है? कहता मैं उनसे पुलिस वालों से पूछूंगी कि मेरे पापा के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। मैं कहा बेटा, अगर ये मेडिकल फील्ड के और ये पुलिस और ये सोशल वर्कर्स अगर ये सड़क पे ना आए, कैजुअलिटी हो जानी है उनको। और जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं समझूं कि आप सभी खुश नसीब हो। आपके पेरेंट्स को भी मैं सल्यूट करता हूं कि आपके लिए उन्होंने ये फील्ड चुना है। जो एक ये 1 डे सेमिनार था, तो इसके अंदर मेरे ख्याल बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी अभी भी पेंडिंग रह गई होंगी, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ये टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो इसके अंदर हमारे पास रविंदर जी, ये हमारे नजीक हैं, मैडम मन्नत डिल्लो, ये भी वहीं पर होते हैं। तो उसका एक ऑफिस अपना बिलासपुर में है,
तो सरदार हरदेव सिंह जी ये वहाँ पर डील करते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी रह गई अगर, तो वहाँ पर आप अपनी अच्छे तरीके से वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि क्या सिस्टम है, कितनी सैलरी हो सकती है, कितने दिन में वीजा मिल सकता है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी इस रिगार्डिंग इसके आप क्वेश्चन हैं, क्यों अभी रह गई होंगी ये अपनी पेंडिंग आपकी क्वेरी। तो मैडम कवलजीत कौर जी, डॉक्टर कवलजीत, इनका मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ कि बड़ा अच्छे तरीके से ये मंच संचालन अदा कर रहे थे। मतलब ये मेरी बेटी है, मैं फर्स्ट टाइम इनको देखा कि बड़े बखूबी, तो इनका आशीर्वाद, इनकी ब्लेसिंग्स डॉक्टर अग्रवाल जी की, तो ये भी अपने इनको बेटी समझते हैं, इनको अपना ब्लेसिंग समय समय पर देते रहते हैं। बड़े अच्छे तरीके से मंच संचालन कर रहे थे। तो विशेष तौर पे थैंक्स मैडम डेनिला फ्रॉम माल्टा, इंटरनेशनल स्टूडेंट एम्बेसडर, तो जिन्होंने आपकी क्वेरी जो है वो थोड़ी दूर की हैं, जो आपको थोड़ी कोई प्रॉब्लम जो आपको पूछना चाहते थे, तो आपने उनका जो सोल्यूशन थोड़ा बहुत इन्होंने बताया। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट ये लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ कि हरदेव सिंह ने जहां से बात शुरू की थी कि हमारे मन के अंदर एक डर सा होता है जब बाहर जाते हैं, पेरेंट्स को भी और होना भी चाहिए और होता भी है, कि कहीं कोई एजेंट, क्योंकि बहुत सारे हम पेपर्स में अपने मीडिया में हम पढ़ते हैं कि उसको शब्द एक दे देते हैं कि कबूतरबाज, बड़ा फेमस वर्ड है, कि वो पैसे लेके वो एजेंट भाग गया। क्योंकि वो एजेंट वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, किसी और स्टेट से आगे कहीं और ऑफिस खोल लिया, तो अपना 10, 20, 30 अपना कहाँ फंसाए और अपना गो एंड गॉन, उनका पता नहीं होता कहाँ से आए और कहाँ चले गए। लेकिन ये शख्सियत जो सर हरदेव सिंह जी और ये अपना रविंदर शर्मा जी, इसी हमारे क्षेत्र के हैं, इसी इलाके के हैं, वेल रिप्यूटेड पर्सन है, और अपने एजुकेशन, अपना इंस्टीट्यूट, अपना कंप्यूटर सेंटर भी, और अपना ये यूरो स्टेप जोन जो ये अपना ये इंस्टीट्यूट से अपना चला रहे हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी से, बहुत बढ़िया तरीके से, और जो इनका जो है फेयर काम है, बिल्कुल फेयर काम है, ये मैं अपना दिल से कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, कि मैं बिल्कुल दिल से कह सकता हूँ कि बड़ा फेयर काम है इसमें। ये केवल लुभावने वाली एक बिजनेस के तौर पे बात नहीं कर रहा, कि मैं दिल से, और इनको आशीष भी देता हूँ कि परमात्मा करे ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, तरक्की करे, क्योंकि सारी बातें बिजनेस पर्पज से नहीं होती, क्यों लोगों के अंदर कोई भावना भी होती है कि हम यहाँ पर आए हैं तो समाज के लिए कुछ करें। From our Ayurveda side, all the students of Ayurveda, they people are curious to know one thing, that whether we people are allowed to do jobs after completion our degree from India or not. Every country is having a different national healthcare system. Until and unless you people get registered in that, you can't even do job. So for this purpose, you can pursue MBA from Malta, and after complete, if I'm not wrong, you can pursue your MBA in Malta in either hospital administration or hospital management, and after completion of that particular degree, you can score any job there in the country itself. This is your basic degree Ayurveda, and after completion of your post graduation, either in MBA if you people are pursuing, you will be considered as MBA. So until and unless if you people are getting registered yourself in the national healthcare system, you can't even do job as a Ayurvedic physician. यही तो होती है बात यार। एक बात होता है, ये लोग ना ये चाहते हैं कि कुछ पूछे, जो नहीं पूछते रहते लास्ट टाइम गए। थैंक यू। 3 आयुर्वेदिक कॉलेज हरियाणा के अंदर खुलने जा रहे हैं, और रिस्पेक्टिवली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर खुलने जा रहे हैं। अब हमने, आप कहेंगे कि आपने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज क्यों कराया, कि ऐसा मेडिकल फिट से तो सच इम्पोर्टेंट कुछ टास्क था नहीं, कि अगर शायद कुछ डाउट्स हों, कुछ डाउट्स गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से कि हमारा एस्पेक्ट वहाँ पे बाहर कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ है जो हमने इस चीज़ को जो मैंने अलाउ किया और इस चीज़ को करने के लिए सेमिनार को, वो ये है कि नंबर ऑफ BMS ग्रेजुएट्स आर नाउ बिकमिंग सरप्लस। अब आप कहोगे कि फ्यूचर कैसे सेफ हो, फ्यूचर MD नहीं है, ये दिमाग में से निकाल दीजिए।
1%, सिर्फ 1% है जो सरवाइव करेंगे एमडी के बाद, रेस्ट भीड़ में खो जाएंगे। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, अब वो नहीं है। एक टाइम हुआ करता है जब हम क्वालिटी और क्वांटिटी, हम 2 फैक्टर्स पे काम करते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब भारत के अंदर हेल्थ सिस्टम में क्वांटिटी नहीं है तो हम क्वालिटी को देखते नहीं है। उस टाइम हम सिर्फ कहाँ होते हैं, चाहे वो नर्सिंग फील्ड है, चाहे वो हमारा डॉक्टर है, डॉक्टरशिप है, तब हम वहाँ पे होते हैं सिर्फ क्वांटिटी को पूरा करना। वहाँ पे हमारा क्वालिटी फैक्टर बिल्कुल भी नहीं रहता। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हेल्थ वर्कर चाहिए, वो कहते हैं कैसा, पता नहीं, सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और उसको हम जोन में उतार। हु इज वेरी हार्ड वर्कर, हमें पूरा का पूरा पता चलता है सरनजीत जी के माध्यम से, एचआर झारखंड के माध्यम से, बिलासपुर में, इवन दो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में क्या चल रहा है, वो इनसे बड़े एंथुजियास्टिक ये काम करते हैं। हम बहुत शुक्रिया कहते हैं इनका कि ये हमारे साथ भी बने रहते हैं। और अभी कपाल मोचन की रिसेंटली बड़ा ही तीर्थ स्थल है, अगर पता नहीं है कुछ बच्चों को कि जिस आप धरती पे बैठे हो इस समय, ये एक तीर्थ है, एक तीर्थ है। यहाँ पर महाभारता लिखी गई है, यहाँ पे वेद व्यास जी का टेम्पल है, सरस्वती उद्गम स्थल है। तो ये बहुत ही, और कपाल मोचन वन ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ द सिखिज्म, ठीक है। तो हम बहुत ही पवित्र धरती पे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसी पवित्र धरती पे हमें ज्ञान भी मिल रहा है। आपके गुरुजन हैं यहाँ पे, आपके विदाउट टीचर्स नथिंग इज पॉसिबल। गुरु चाहिए, विदाउट टीचर नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू गिव you people said very quietly and calmly, और आप लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए। जो भी क्वेश्चंस फर्दर होंगे वो भी आप रेज कीजिएगा। थैंक यू फैकल्टी मेंबर्स एंड एवरीवन, ठीक है। तो मैं हूं इस वक्त एलबीएस मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हमारे साथ बीएमएस की छात्राएं हैं जो कि इस वर्ष यहां पर स्टडी कर रही हैं, और माल्टा जैसे देश में अगर वो जाना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं, आज के सेमिनार से उनको क्या कुछ शिक्षा मिली है, क्या कुछ वो जानना चाहती थी, उनके क्वेश्चंस भी हम सुनेंगे और जानेंगे कि आज के सेमिनार से उनको कितनी मदद मिली है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आपने क्वेश्चन भी पुटअप किया, इस सेमिनार में आपको क्या जानकारी मिली और आपके पहले क्या क्वेश्चन थे? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम आए, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया और एजुकेट किया कि बाहर जाना चाहिए, कैसे क्या होता है रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। और मेरा क्वेश्चन ये था मैम से कि एमपीएच के कोर्सेज, दैट इज़ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, कैसे करते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग मैम ने बहुत अच्छे से मुझे इंट्रोडक्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस सेमिनार। और आप भी चाहते हैं कि विदेश में जाकर, जैसे आप बीएमएस कर रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि स्टडी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा देश में जाकर आप वेल सेटल्ड हों, या इंडिया में ही सेवा करना चाहते हैं? ऑब्वियसली पहला एस्पेक्ट रहेगा कि इंडिया में ही सेवा करें, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डिमांड करता है मोर डॉक्टर्स इन इंडिया टू। तो बट अगर ऐसा होता है कि बाहर नीडेड हो तो बिल्कुल जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, और अच्छे से प्रिपेयर करके बाहर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम इंडियंस भी कम नहीं है किसी से। तो आज जैसे माल्टा देश के लिए सेमिनार था, तो कुछ जानकारी मिली वहाँ से? कुछ मन में क्वेश्चन थे जो दूर हो चुके हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दूर हो गए हैं। बाकी सर हैं हेल्प करने के लिए, वो हमें हेल्प करेंगे अगर आगे क्वेश्चंस होंगे तो। थैंक यू। आज के सेमिनार से कुछ जानकारी मिली आपको? Yes, sir. Through this seminar, I came to know about all the processes and options that I can opt for as a BMS doctor not in India, even in abroad. And as Daniela ma'am explained all the procedures and norms that we have to follow to practice our pathy in country like Malta. तो ये तीसरा सेमिनार था यूरोस्टेप जोन का, जो कि एलबीएस मेडिकल कॉलेज है मारवा कला के अंदर। जिस तरीके से आपको हमने पहले भी 2 वीडियोस में दिखा चुके हैं कि हर जगह जो है सीएमबीएस कॉलेज की जो रिप्रेजेंटेटिव है डेनेलिया कैलिस, वो जाकर सेमिनार ऑर्गेनाइज करता था कि बच्चों का भविष्य बन सके, बच्चे बाहर जाके स्टडी कर सके, खूब सारा पैसा कमा सके। तो ये कॉलेज जो है एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर जा भी चुके हैं और हजारों की संख्या में यहाँ स्टडी कर भी रहे हैं। तो हमारे साथ इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का एक सेमिनार कैसे सक्सेसफुल रहा और किस तरीके से बच्चों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली है माल्टा जैसे देश में एक स्टडी के लिए और बिजनेस के लिए? आज के सेमिनार में हमारे बच्चों को काफ़ी कुछ जानने को मिला कि उनको अपनी यहाँ पर स्टडी करने के बाद इंडिया में आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़
फॉरेन में या अब्रॉड में क्या क्या है, उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और इस जानकारी का इनको लाभ मिलेगा। और आने वाले फ्यूचर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो ट्रेंड हैं वो जाकर के दूसरे देशों में भी लोगों के हेल्थ सिस्टम को सुधारेंगे और उस देश के हेल्थ सिस्टम डिलीवरी सिस्टम में भी काफ़ी कारगर साबित होंगे और बच्चों को बाहर जाकर के काफ़ी जो है तरक्की और उन्नति वो अपने भविष्य में कर सकेंगे और उन देशों के अंदर भी भारत का योगदान रहेगा कि वहाँ के हेल्थ सिस्टम को सुधारा जाए और हमारे बच्चों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे कि सर आजकल वायरस एक से एक आ रहे हैं, अभी ओमिक्रॉन का भी दौर शुरू होने जा रहा है, तो बच्चे जैसे मेडिकल में बहुत सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि अगर मेडिकल सुविधा हो तो हमारा देश जल्द ही इस बीमारी से निजात पा सकता है। और आपके कॉलेज से हज़ारों स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़कर भी और डिग्री हासिल करके, तो आने वाला दौर जो है विदेशों में जैसे स्टडी करना हो चाहे इंडिया में, तो कैसा रहेगा बच्चों का फ्यूचर? बच्चों का फ्यूचर काफ़ी इसमें उज्जवल रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को जो भी लेटेस्ट कोई भी बीमारी या संक्रामक रोग जो भी फैलता है सारी दुनिया में ही किसी ना किसी परसेंटेज के अंदर वो पाया जाता है, तो उसको ट्रीट करने में हमारे बच्चे जो हैं उसमें काफ़ी कारगर साबित हो गए, क्योंकि यहाँ पर हम हर प्रकार की हर एंगल से हर प्रकार की स्टडी लेटेस्ट जो भी दृष्टिकोण है वैज्ञानिक तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरोपैथी से और योगा के द्वारा तथा मॉडर्न मेडिसिन की भी इनको हम नॉलेज देते हैं। उससे ये सारी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छे साबित होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने LBS मेडिकल कॉलेज जो की है, लंबे समय से आप लोगों को हम वीडियोस भी दिखाते आए हैं और आज फिर से हम पहुंचे थे इस कॉलेज में। एक सेमिनार रखा गया था CMBS कॉलेज और यूरोस्टेप जोन के माध्यम से। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बाहर जाकर स्टडी करें, माल्टा जैसे देश में स्टडी करें, पढ़ाई करें, बिजनेस करें, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यूरोस्टेप जोन से जुड़कर आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। अच्छा 71 के लिए LBS मेडिकल कॉलेज से सरनजीत सिंह।